बच्चों कैसे हो? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate angles, exterior angles, interior angles, all these things. And this is not a new topic for you. You have already studied this before 2 years. In 7th class or 6th class you might have studied about this. Okay? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसके बारे में. चलो. Now suppose these are two lines. Let me name as M and N. And these two lines are intersected by a transversal L. Okay, L क्या करता है? दोनों लाइन को काट रहा है. So L you can call as transversal. बच्चों इसका नाम क्या है? Transversal. Okay. Now let me name some 4 angles over here. This is angle 1, 2, 3 and 4. This is 5, 6, 7 and 8. Is it clear? Now first I am going to start with very simple angle pair, that is number 1 is vertically opposite angle. So which are vertically opposite angle? Tell me my dear students here. क्या होगा बताइए? Angle 4 and angle 2. और कुछ पेयर ये दोनों, this 2 pair, angle 1 and angle 3. Here 2 angle 8 and angle 6. यहाँ पे angle 5 and angle 7. So these angle pairs are called vertically opposite angle. Vertically opposite यानी vertically means, my dear student, this is vertex. क्या नाम है? Vertex. तो vertex के opposite. So don't you feel this is the vertex? Let me call this as vertex A and this is vertex B. देखिए दिस 2 एंगल्स आर वर्टेक्स के ऑपोजिट में है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखिए नाम के पीछे में उसका आंसर छुपा होता है. ओके, इसलिए नाम को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए. तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ऑपोजिट में बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हियर सी केयरफुली this part my dear students you can call as interior. Logic also says that it is interior. ठीक है. और ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो मैंने वेव जैसे बनाया है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब बाहर. दिस इज ऑल्सो external. Is it clear my dear students? Now you see these 4 angles 2, 3, 8, 5, ये चारों को क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीरियर एंगल्स. 1, 4, 7, 6, ये चारों को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स. इट्स वेरी सिंपल राइट. देखिए अपने आप से ये फ्लो हो रहा है, आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है ये. भाई ये 4 एंगल अंदर वाली है इंटीरियर एंगल, ये 4 एंगल बाहर वाला है एक्सटीरियर एंगल्स. दैट्स ऑल. नाउ if you see, transversal is dividing this entire plane into 2 part. एक जा रही है राइट साइड में और एक है लेफ्ट साइड में. Is it clear? So these 4 angles are located on one side, that is right side. 4, 3, 8, 7 are located on the one side, or you can call it as the same side also, that is left side. तो यानी ये चारों एंगल को क्या बोलेंगे? दिस 4 एंगल्स आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड, दिस 4 एंगल्स आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया. अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टेल मी 2 and 5 के बारे में क्या बोलेंगे आप? बताइए. 2 and 5 आर इंटीरियर, सही है, एंड ऑन द सेम साइड. सो 2 and 5 आर इंटीरियर ऑन द सेम साइड. सेम साइड मतलब एक ही तरफ भाई, या तो उस तरफ या तो इस तरफ.
1 and 6 are exterior on the same side, 3 and 8 are interior on the same side, 4 and 7 are interior on the same side. Sorry, 4 and 7 are exterior on the same side. That's all. देखिए अपने आप से आ रहा है. Interior same side, 1 and 6 exterior same side, 4 and 7 exterior same side, 3 and 8 interior on the same side of the transversal. Next is, what is corresponding angle? corresponding, आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है बच्चों. इसका मतलब ये है सेम लोकेशन. व्हाट इज द मीनिंग? सेम लोकेशन, यानी एक ही लोकेशन में. देखिए, इफ यू सी फोकस ऑन ए एंड इफ यू फोकस ऑन 1, टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस एंगल 1. So this angle 1 is located above the line M and on the right side of the transversal. Okay. Now here, tell me which angle is above the line and on the right side. आप ये लोग बताइए. I am not going to tell you. Above the line, right side. Above the line, right side of the transversal. Yes, this is angle 5. So this angle 1 and angle 5 have same location, and such angles are called corresponding angles. बच्चों क्लियर है? तो बताइए corresponding पेयर कौन कौन हुआ? 1 and angle 5. और corresponding पेयर बताइए. 2 का लोकेशन बताइए. below the line on the right side. So which angle here is below the line right side? लाइन के नीचे राइट साइड. ये 6, मैंने सुन लिया 6. तो आप यहाँ बोलेंगे बच्चों एंगल 2 एंड एंगल 6. सिमिलरली बच्चों यहाँ क्या बोलेंगे बताइए? एंगल 4 का लोकेशन बताइए. लोकेशन बताइए. अबव द लाइन लेफ्ट साइड एंगल 4. एंड एंगल 4 किसका दोस्त है बताइए? 8 का. above the line on the left side. So this is corresponding angles. Now angle 3, location बताइए. below the line on the left side of the transversal. 7 का लोकेशन बताइए. below the line on the left side of the transversal. So angle 3 and angle 7. तो बच्चों ये सारे पेयर को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अगली बार से बाय हैंड बिल्कुल नहीं करने का. करस्पॉन्डिंग यानी जिसका लोकेशन सेम, जिसका स्टेटस सेम, जिसका रैंक सेम, जिसका एज सेम, जो भी सेम. ओके, जैसे इफ योर एज इज 13, देन ऑल दी चिल्ड्रन हुज एज आर 13 आर करस्पॉन्डिंग्स. ओके, सपोज यू आर स्टडिंग इन 9th standard and your friend is also studying in 9th standard but in other school, then you both are correspondings. corresponding मतलब सेम. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड मैं बात करता हूं ऑल्टरनेट एंगल के बारे में. ऑल्टरनेट, बिल्कुल बाय हार्ट नहीं बच्चों. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट मतलब होता है क्रॉस. याद रखिए बच्चों, ऑल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस कनेक्शन. आप ऐसे मान सकते हो बच्चों. क्या मतलब होता है? क्रॉस कनेक्शन. तो बताइए इसमें क्रॉस कनेक्शन किस किस के बीच में है? 3 and 5. ओके, दे आर क्रॉस कनेक्टेड एंड दे आर इंटीरियर. तो बच्चों 3 और 5 को बोलेंगे ऑल्टरनेट बिकॉज दे आर क्रॉस कनेक्टेड, इंटीरियर बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल्स. सिंपल लॉजिक, करेक्ट. तो व्हाट विल यू से? एंगल 3 एंड एंगल 5. और बताइए एंगल 2 एंड एंगल 8. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट 4. 4 is alternate exterior angles. बच्चों alternate क्रॉस कनेक्शन
एक्सटीरियर बाहर का, तो बाहर का ये 4 एंगल है 1 4 7 8, तो विच एंगल्स आर क्रॉस कनेक्टेड, टेल मी, 4 and 6, 4 and 6, so you can write angle 4 and angle 6. और बताइए बच्चों, angle 1 angle 7, angle 1 and angle 7, so they are alternate exterior angles, they are alternate interior angles, they are corresponding angles, they are vertically opposite angles. Clear? तो कोई एंगल बाय हार्ट आप नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, बाय हार्ट खत्म, समझना शुरू. क्लियर? अब बच्चों चलिए बच्चों, अब बताइए, और अभी इसमें नया चीज क्या है. अब एंगल 1 2 5 6 को क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए. दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. चलिए मैं लिख देता हूं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कौन कौन सा एंगल है बच्चों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. बताइए जल्दी से, कौन कौन सा एंगल है. एंगल 1 कॉमा एंगल 2 कॉमा एंगल 5 एंगल 6, दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑल्सो. तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर ये भी तो सॉरी मैंने गलती बोल दिया, इंटीरियर एंगल्स नहीं लिखना है, आपको खाली लिखना है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और बताइए, और एंगल 4 एंगल 3 एंगल 8 एंगल 7, दे आर ऑल्सो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इज इट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया. अब 2 and 5 के बारे में बताइए, क्या बोलेंगे, बताइए. दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. What is 1 and 6? And here also 3 and 8 interior angles on the same side of the transversal. 1 5 के 6 1 और 6 के बारे में क्या बोलेंगे, they are exterior angle on the same side of the transversal. 4 and 7 के बारे में क्या बोलेंगे, they are exterior angle on the same side of the transversal. बच्चों ठीक है, तो ये मैं 2 लिखा नहीं हूँ, लिख लीजिए नोटबुक में कि 2 and 5 are interior angles on the same side of the transversal. Both the angles are located on the right side. ये दोनों का साइड सेम है, देखिए उसी तरफ में है. ये दोनों एंगल एक्सटीरियर है, उसी तरफ में है. ये दोनों एंगल इंटीरियर है, इसी तरफ में है. ये दोनों एंगल इंटीरियर है, इसी तरफ में है. तो इसको हम लोग बोलेंगे सेम साइड. क्या बोलेंगे, सेम साइड. करेक्ट. तो बच्चों बस इतना है एंगल का लोकेशंस विच यू शुड नो एग्जैक्टली. बिल्कुल बाय हार्ट मत करिए, एकदम रिलैक्स रहिए. ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको और 2 मिनट का रिवीजन कर देता हूँ. ध्यान से सुनिए मेरी बात. वर्टिकली मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बताइए मैं इसको मीट दूँ. ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से. ओके चलिए अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छा से. देखिए कोई भी चीज़ आप बाय हार्ट नहीं करोगे, कसम खा लीजिए. हम समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि एक बार समझने के बाद उसको फिर से भूलना नहीं. जैसे अगर कोई मूवी देख लेते हो, फेवरेट मूवी, बढ़िया सा पिक्चर है भाई, सलमान खान का है, किसी का बढ़िया से है, अगर आप देख लेते हैं तो आपको पिक्चर याद हो जाता है, 3 घंटे में ही याद हो जाता है पूरा पिक्चर. करेक्ट. वैसे ही हर क्लासरूम को एक मूवी बना लीजिए. करेक्ट. और मेरे को हीरो बना लीजिए. नहीं सॉरी मेरे को हीरो नहीं, आप हीरो किसी को भी बना लीजिए, लेकिन हर क्लास को एक मूवी बना लीजिए, क्योंकि मूवी में आपको सारा चीज़ याद रहेगा, कोई बाय हार्ट नहीं. नाउ टेल मी बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या है. ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स. 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. वर्टेक्स के ऑपोजिट, यानी ये दोनों एंगल को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एंगल और ये एंगल को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड इट हैज बीन सीन दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. राइट. चलिए आगे निकले. नो बाय हार्ट.
करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है बच्चों, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। करस्पॉन्डिंग यानी सर ने बताया सेम लोकेशन। देखिए इसका लोकेशन सेम, अबव द लाइन राइट साइड, अबव द लाइन राइट साइड, इन दोनों का लोकेशन सेम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डाउन राइट, इनका लोकेशन सेम, अबव लेफ्ट, इसका और इसका एंगल का, ये चारों, ये एंगल का लोकेशन सेम माय डियर स्टूडेंट। दिस इज करस्पॉन्डिंग पेयर। आप चाहे तो ये फिगर को भी बना लीजिए, बहुत क्रिएटिव फिगर है, बहुत बढ़िया फिगर है। करस्पॉन्डिंग से घबराना नहीं, आज से करस्पॉन्डिंग मतलब सेम लोकेशन, सेम एज, सब कुछ सेम, करेक्ट। चलिए बच्चों, मैंने इसको मीट दिया। ये सारे फिगर को पॉज करके बना सकते हैं, लास्ट बोर्ड में जो मैंने लिखा था उसके साथ में आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ सी केयरफुली, नाउ यू सी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बच्चों ये चारों एंगल को बोलेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये एंगल तो मैंने थोड़ा सा चेंज करके बना दिया, मत सोचना भाई ये क्या बना दिया सर ने, एंगल ही है। और ये एंगल और ये एंगल को भी, चारों एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए वेट दो फटाफट देखिए, बिल्कुल बाय हार्ट नहीं बच्चों। ये चारों एंगल को मैं क्या बोलूँगा, अंदर वाला एंगल, क्योंकि ये लाइन के अंदर है। ये बाहर वाले एंगल को मैं क्या बोलूँगा बच्चों, यार मैं नाम ही में बोल दिया, बाहर वाले को क्या बोलूँगा, बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो 1 2 3 4 एक्सटीरियर, 1 2 3 4 इंटीरियर एक्सटीरियर। समझ में आ गया बच्चों। यार अंदर का एंगल, कोई भी चीज़ अंदर रख देंगे, घर के अंदर है, कार घर के बाहर खड़ा है, बच्चा घर में खेल रहा है, घर के अंदर खेल रहा है, वही है अंदर बाहर, दैट्स ऑल। एकदम लॉजिक लगाइए, लॉजिक। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, देखिए, सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ मत देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर देख रहे हैं थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर यहाँ वहाँ देखिए। पढ़ाई के टाइम यहाँ वहाँ बिल्कुल मत देखिए। चलिए अब देखिए, ये दोनों एंगल को मैं क्या बोलूँगा, कमॉन जल्दी बताइए, ये दोनों एंगल को मैं क्या बोलूँगा। सर इंटीरियर है, एकदम इंटीरियर है। ऑन द सेम साइड है, एकदम है। सो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको भी क्या बोलूँगा बच्चों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये एंगल को क्या बोलूँगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये एंगल को क्या बोलूँगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बढ़िया, ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है सर। यस आएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको एक लॉजिक दिया है। लॉजिक जो यहाँ होता है, वो बटन को थोड़ा सा ऑन कर दीजिए, उसका नॉब को फुल घुमा दीजिए, फिर देखिए फॉर्मूला बाहर से अंदर नहीं घुसेगा, अंदर से फॉर्मूला बाहर आएगा। एम राइट? एंड यू बिकम साइंटिस्ट, यू बिकम जीनियस, यू स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट। आपको लगेगा मैथ्स इतना आसान था क्या, ज्योमेट्री इतना आसान था क्या। हाँ बच्चों, बस ऑब्जर्वेशन को तेज रखिए, लॉजिक बटन को ऑन रखिए, फिर देखिए फॉर्मूला बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आएगा। एम राइट? चलिए